ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق میں تاریخی فتح. قوم خوشی سے سرشار. سجدہ شکر کے ساتھ ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں خصوصی تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام. مختلف شہروں میں پرچم کشائی. قوم کے حوصلے بلند، جذبات بے مثال. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی. وزیراعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے فضا میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا. پاک فوج کے ہاتھوں ازلی دشمن بھارت کی عبرتناک اور ذلت آمیز شکست. پوری قوم رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز. دن کا آغاز مساجد میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں سمیت گلگت بلتستان مظفرآباد میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی 21ویں صدی کی سب سے طویل فضائی جھڑپوں میں سے ایک میں دشمن کی برتری کی خوش فہمی کو خاک میں ملانے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں سے ملاقات. محمد شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ. نائب وزیراعظم، وفاقی وزراء، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی وزیراعظم کے ہمراہ. مختصر جنگ میں دشمن کے نہ صرف دانت توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اپنی اعلیٰ ترین پروفیشنل مہارت، دلیری کے ساتھ دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. پاک فضائیہ نے 3 رافیل سمیت دشمن کے 6 طیارے تباہ کیے. عسکری قیادت نے فرنٹ سے لیڈ کیا. ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے اور دن میں تارے دکھا دیے. ہماری افواج نے اپنی مہارت اور عزم سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. پاک فوج نے جوابی کارروائی میں عسکری تنصیبات کو ٹھیک نشانہ بنا کر دشمن کو حواس باختہ کر دیا. شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. عظیم کامیابی پر اللہ کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کامرا ایئر بیس پر پاک فضائیہ کے شاہینوں سے گفتگو. پاکستان کی بہادر اور پیشہ ورانہ مسلح افواج نے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہری باب رقم کیا. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا. دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے. پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے یوم تشکر کے حوالے سے پیغامات. صدر آصف علی زرداری کی مارکہ حق میں شہید ہونے والے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے راولپنڈی میں گھر آمد. صدر مملکت کا شہید کے والد اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی اور بلندی درجات کی دعا. قوم دفاع وطن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر شہید کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے. ہم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے. صدر آصف علی زرداری.
कराची में मज़ार क़ायद पर यौम तशक्कुर के हवाले से पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाज़री, दुआ की और फूल रखे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अजीम कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके भारत को शिकस्त दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मज़ार इकबाल पर यौम तशक्कुर के हवाले से खुसूसी दुआया तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने दुआ कराई, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर और मार्का हक की तकरीबात। वज़ीर आला पंजाब ने परचम कुशाई की, शुहदाए कराम के लिए दुआए मग़फ़िरत और दरजात की बुलंदी की दुआएं। कुरान खानी का एहतमाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुल्क कौम की तरक्की के लिए मसाजिद में खुसूसी दुआएं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमाए कराम, अवाम और अफवाज पाकिस्तान का मुश्तरका अहद। कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मनों का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब। गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने यौम तशक्कुर पर गवर्नर हाउस में परचम लहराया। शुहदाए वतन और मुल्क की सलामती के लिए दुआ। यौम तशक्कुर, शुहदा के मज़ारों पर खुसूसी तकरीबात। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। गोजर खान में मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक भारत जंगबंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं मोहसिन नकवी। ग्रीन स्कूप बॉन्ड्स का इजरा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमायां कमी हुई है। मुल्क की मुआशी और इक्तसादी तरक्की का आलमी सतह पर भी एतराफ़ जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कूप बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब। हम जनूबी एशिया की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। सी पैक के तहत खुसूसी इकनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। खित्ते में अमन से ही जनूबी एशिया में तरक्की होगी। हमें ग्रीन एनर्जी की जानिब बढ़ना होगा। बढ़ती हुई आबादी मईशत की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। शिमाली वज़ीरिस्तान के कबायली मशरान का मार्का हक में फतहयाबी पर खुसूसी जिरगे का इनेकाद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शहादत का रुतबा पाने वालों की कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। शुरका ने दुश्मन को मुतनब्बे किया कि गयूर कबायली अवाम अपनी दरख्शां रवायात के मुताबिक मुस्तकबिल में भी अफवाज पाकिस्तान का हमेशा साथ देंगी।
غزہ کے جبالیہ کیمپ میں ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی رات بھر بمباری، 143 شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں ڈاکٹرز، طبی عملہ اور مریض شامل۔ شہداء میں 13 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے فضائی حملوں کے دوران غزہ میں 45 بچوں کی ہلاکت بربریت اور بے حسی ہے۔ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے بھوک کا شکار ہیں، خوراک، پانی اور ادویات سے بھی محروم ہیں۔ بچوں کے لیے کہیں بھی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ یہ وحشت بند ہونی چاہیے۔ یونیسیف سربراہ کیتھرین رسل۔ دیکھو آج میرا ایکس دیکھو ایسی میری وائب دیکھو کیسا میرا فلیکس دیکھو۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ دوبارہ سجنے میں ایک روز باقی۔ گروپ مقابلے کا کل سے آغاز۔ ایونٹ کے 27ویں میچ میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گے۔ پلے آف مرحلے اور فائنل کی میزبانی لاہور کرے گا۔ پلے آف مقابلے 21، 22 اور 23 مئی کو شیڈیول۔ فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ تمام مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان سپر لیگ میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان واپسی کا سلسلہ جاری۔ بنگلہ دیش کے شکیب الحسن، سری لنکا کے بھانوکا راجاپکسے اور زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندر اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر سمیت 6 غیر ملکی کھلاڑی کراچی کنگز کو جوائن کر رہے ہیں۔ فن ایلن اور رائلی روسو بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے دستیاب۔ روم میں WTA ماسٹرز 1000 ایرانین اوپن، امریکہ کی کوکو گاف اور اٹلی کی جاسمین پاولینی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سیمی فائنل میں کوکو گاف نے چین کی کن ون زینگ کو شکست دی۔ جاسمین پاولینی نے امریکہ کی پیٹن سیٹنز کو مات دے کر ایونٹ کے فائنل میں رسائی حاصل کرنے والی پہلی اطالوی خاتون کا اعزاز حاصل کیا۔ اٹالین اوپن مین سنگل سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ عالمی نمبر 1 اٹلی کے جینک سینر اور امریکہ کے ٹامی پال سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں جینک سینر نے ناروے کے کیسپر روڈ، ٹامی پال نے پولینڈ کے ہربرٹ ہرکچ کو شکست دی۔ اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرانڈ ٹور جیرو ڈی اٹالیا چھٹا مرحلہ آسٹریلیا کے کیدن گرووس کے نام رہا۔ گرووس نے 227 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 59 منٹ 52 سیکنڈز میں طے کیا۔ ڈنمارک کے میڈس پیٹرسن مجموعی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قوم آج مارکہ حق آپریشن بنیان و مرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر یوم تشکر ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں استحکام پاکستان اور ترقی و خوشحالی کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں خصوصی تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب آج پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز بھی شریک ہوں گے۔ مارکہ حق کی فتح اور یوم تشکر کے حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبززار میں سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا۔ اس موقع پر ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
मार्का हक यौम तशक्कुर मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और वतन अज़ीज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले तमाम शुहदा के मज़ारात पर फूल रखे जा रहे हैं और उनकी बुलंदिया दरजात के लिए दुआ की जा रही है। पाकिस्तान की बहादुर और पेशेवराना मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को हर महाज हर मार्के पर मौसर और भरपूर जवाब दिया है और हालिया मार्के में ये भरपूर जवाब देकर दुश्मन के दांत खट्टे किए और अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम करते हुए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने ये साबित कर दिया कि हम दाई अमन हैं, हम अमन पसंद हैं, लेकिन अपने वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दिफा करना भी खूब जान। या रब्बल आलमीन, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अफवाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा के दरजात बुलंद फरमा। इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो वादे और बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा के हक़ में इरशाद फरमाई, उन सब से इन्हें सरफराज फरमा। या अल्लाह, हमारे शुहदा की कुर्बानियों के तुफैल अर्ज़े पाक को हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। आमीन। यौम तशक्कुर के मौके पर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील कोर कमांडर बहावलपुर ने तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाज़री दी है, फूल रखे हैं और शहीद के बुलंदी दरजात के लिए दुआ की है। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर और पेशावराना मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के हर महाज पर दांत खट्टे किए और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। यौम तशक्कुर के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने इन बेगुनाह शहरियों की खातिर जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। जवाब में हमारे शाहीनों ने ऐसी कारी ज़रबे लगाई कि दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी और कौम की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ, जिन्होंने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान के समंदरी पानियों की हिफाजत करती रही।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का नहायत ही पेशावराना अंदाज, दुरुस्तगी और भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया है। यौम तशक्कुर के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर रब्बे जुल जलाल के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दलेर सिपाहियों और अस्करी क़यादत, बिलखसूस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर ममलिकत ने कहा कि यह कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की है, जो दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियान मरसूस की मानद खड़े रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा करते हुए कहा है कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। ये तनाज़ा खित्ते को दोबारा जंग की लपेट में ले सकता है। कामरा एयरबेस पर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे बहादुर सपूतों ने भरपूर और दुरुस्त जवाब से 6 तैयारे तबाह करके दुश्मन के चारों तबक रोशन कर दिए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शामिल बहादुर अफवाज के जवानों की सताइश और हौसला अफजाई के लिए दूसरे मरहले में पाक फ़ज़ाइया की कामरा एयरबेस पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी की सबसे तवील फ़ज़ाई झड़पों में दुश्मन की बर्तरी को खाक में मिलाने वाले शाहीनों से मुलाकात की और उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, वफाकी वुज़रा मोहम्मद इसाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल और आला सिविल और अस्करी हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे शाहीनों ने एम आलम, सीसल चौधरी और सरफराज रफीकी की बहादुरी और जुर्रत की याद ताज़ा कर दी। दुश्मन ने हमारी अमन की पेशकश को ठुकराते हुए जारियत की और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमारी बहादुर अफवाज के मुंह तोड़ जवाब ने दुश्मन को हवास बाख्ता कर दिया। मुख्तसर जंग में आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं, चारों तबक रोशन कर दिए और दोस्तों और भाई खाओं के एतमाद को आपने आसमान तक पहुंचा दिया। अफवाज पाकिस्तान के इस शानदार कारकर्दगी के ऊपर पाकिस्तानी तो उनके तो सर फख्र से बुलंद हैं और इस कामयाबी के ऊपर हम सब के गर्दनें अल्लाह के हजूर झुकी हुई हैं। मगर दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोन देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल करना होगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक के खुद इरादियत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको देना होगा। आए इसके लिए बैठकर बात करें ताकि ये वो इशू जो कभी भी दोबारा जंग की आग को भड़का सकता है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करें। पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी जग हसाई की और दुनिया को पता लग गया कि ये एक खौल है, एक बड़ी ताकत का अंदर से झूठ और अंदर से खोखलापन है और वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक जो अक्सरियत जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। हम इस नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुक्तिबानी की तरबियत से लेकर जाफर एक्सप्रेस के वाक़ये तक होने वाले वाक़यात पर बात करना होगी। अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है खत्ते में तो आए बैठे और बात करते हैं कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द का निशाना बना।
बात आपने की कि ट्रेड एंड टेरर दे डोंट गो टुगेदर, ये दहशतगर्दी किसने की? हमारे बच्चों को तो आपने मारा कि शायद तारीख इस बेदर्दी को कभी नहीं भूल पाएगी। और ये कोई बात ढकी छुपी नहीं। समझौता एक्सप्रेस कौन नहीं जानता कि किसने उसको अगवा किया था? एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने उसको अगवा किया था। मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था? वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 मई को हमारी बहादुर अफवाज ने चंद घंटे की कार्रवाई में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खरूक को खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने शोहदा पर फख्र है। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इस वक्त आपके साथ हम ये मनाज़र शेयर कर रहे हैं। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह और आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में तमाम शुहदा के जो मज़ारात हैं उन पर हाज़री दी जा रही है, उनके बुलंदी दराजात के लिए दुआ की जा रही है, फूल रखे जा रहे हैं। जातरी के ये मार्का हक में तारीख़ी फ़तह अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क भर में यौम तशक्कुर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए और शहीद की बुलंदी दराजात के लिए दुआ की गई। मेजर जनरल आकिफ जावेद ने हाज़री दी मज़ार पर और फूल रखे। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने और अर्ज़ वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले इस बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का खून भी तज़ईन गुलिस्तान में शामिल है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। और उनकी इसी बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से भी नवाजा गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मार्का हक में तारीख़ी फ़तह के सिलसिले में आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर अपनी मदद जारी रखी और पाक फ़ौज और इस मुल्क की गयूर अवाम ने मिलकर दुश्मन का सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुकाबला किया। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बरामदात और सरमायाकारी के फरोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इयादा किया कि हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोजगार के मौक़े की फराहमी और महंगाई के देरपा और मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत से सर हासिल मुशावरत के बाद बुनियादी मौशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा तश्कील दिया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने एक तारीखी कदम उठाते हुए दरामदी महसूलात में बतदरीज नुमाया कमी की मंजूरी भी दी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी। उन्होंने इस इक़दाम को मौशी बेहतरी के हुसूल की जानिब एक अहम संग मील करार दिया और कहा कि फैसले से बरामदात पर मबनी तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकेगा। बेरोजगारी समेत महंगाई की शरह पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। मजीद इसके नतीजे में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और रोजगार के भी नए मौक़े पैदा होंगे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत करते हुए कस्टम्स ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला किया। फिलहाल बाज़ अशिया पर यह शरह 100% से भी तजावुज़ कर सकती है। कस्टम्स ड्यूटी की शरहों में को 4 तक महदूद कर दिया गया है, जिससे दरामदात से मुतालिक कानूनी पेचीदगियों में नुमायां कमी आएगी और मुख्तलिफ सनतों को बराबर के मौक़े मैसर आ सकेंगे। इस अहम इजलास में वज़ीर आज़म के इस तारीखी फैसले से मईशत गैर मुल्की सरमाकारी के लिए खुलेगी और मुल्की सनतों को खाम माल, दरमियानी अशिया और सरमायाजाती सामान बआसानी और सस्ते दामों दस्तयाब हो सकेगा। इसके अलावा मुसाबकत में इजाफे की वजह से मकामी सनतें ज़्यादा मौसर और मुसाबकती बनेंगी, जो मुल्क के लिए बरामदी आमदनी बढ़ाने में मदद देगा। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि टैरिफ में कमी न सिर्फ जारी खाते के खसारे को मुस्तहकम करेगी, बल्कि कस्टम्स ड्यूटी से ज़्यादा महसूलात हासिल करने में भी मददगार साबित होगी। अहम खबर आपको देंगे, बरामदात और सरमाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमायां कमी का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भारत के खिलाफ मार्का हक में शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रावलपिंडी में रिहाइशगाह पर गए और शहीद के वालिद और दीगर खानदान के अफराद से ताज़ियत का इज़हार किया। सदर ममलिकत ने उस्मान यूसुफ शहीद के लिए फातिहा खानी, बुलंदी दरजात की दुआ और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर ममलिकत ने उस्मान यूसुफ शहीद को दिफाई वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उनका कहना था कि हम अपने शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ़ रहेंगे। पाकिस्तानी कौम और शहदा के अहल खाना ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की अजीम फतह पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। शहदा के अहल खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए दिफाए वतन में हमेशा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इजहार किया है। उनका कहना है कि अवाम और पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद होकर साथ खड़े रहे। पाक फौज ने फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये साबित कर दिया कि वो दुनिया के हर चैलेंज का डटकर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। लवाहिकीन ने कहा कि जदीद हिकमत अमली, बहादुर क़यादत और जज्बा शहादत से लबरेज कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के वालिद ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। शहीद के वालिद ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने अज़्म हौसले और कुर्बानी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर अक़वाम आलम में फ़ख्र से बुलंद किया। बेटे को वतन पर कुर्बान करने का कोई दुख नहीं और ना ही ये कोई दुख का सौदा है, बल्कि ये फ़ख्र का मकाम है। कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के वालिद ने कहा कि वतन का हर फर्द सिपाही है, शहादत का मुतलाशी है। यही जज्बा दुश्मन को बार बार शिकस्त देता है। अगर वतन पर कभी भी कोई आँच आई तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। वतन पर जान निछावर करने वालों में 2 भाई सिपाही अरशद खान और हवालदार मोहम्मद जाहिद भी शामिल हैं, जिनकी शहादत पर उनके वालिदैन को फ़ख्र है। सिपाही अरशद खान शहीद का ताल्लुक फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ से था, जिन्होंने गुज़श्ता बरस नवंबर में बाग मैदान में शहादत पाई। मैं हूँ जिंदा मगर ऐसे जिंदों में हूँ तेरी रखवालियों पर जो मारे गए। पाकिस्तान और दी दुनिया पर हिफाजत और दी वतन पर हिफाजत और शहीदान शो और ज़ पे ढेर फखर कोमा और ज़ पे ढेर शुक्र उबासम और बस दागोई दमाखा दे अल्लाह पाक मुंग तोल कामयाब की और ज़मा ढेर तकड़ा नारान बच्चू और शनागर सालिहान और दयो तबाल सेवादी दायो मर्श गैर अलराड़ो दगाद दगाद बद्री मैश्ती पके तेरे शवी नबी अब दे दा बल राड़ो में ढेर अग्रान दा अल्लाह तासान दा मुंग ढेर अग्रान दा
خدای دې خدای راله صبر راکړي او د آخرت خدای دې زموږ خزانه کړي. زما زامن چې کوم دي دا لکه ډېر نږدې وخت کې شهیدان شو، تقریبا 3 میاشتې دغه پکې و، نو موږ ته لکه دا درد ډېر ورسه، خو بیا هم بهرحال د دوی دا شهیدي او دغه چې کوم دي نو په دې باندې زه ډېر فخر کوم چې ما هم خدای شهیدان زامن راکړه. دا هر سړی دا غواړي چې موږ مرګ شهادت شو، خو قسمتدار سړي له به خدای دا ورکوي او دا هر سړي په دې کې لکه عیسا نه کېږي. चांद तारे की खातिर गई जिंदगी, चांद तारे की खातिर गई जिंदगी, और मेरे हाथ से चांद तारे गए. دغه و د زه د دوی یوه خبره ماته نه رامخې ته کېږي چې دوی ماته یا سپوره خبره کړې را یا راته قار شوي دي، بس چې رابله جامې د دوی دغه پیسې د دوی دغه د کور له پلار له پیسې، بس دا په خو دغه به یې ورکولې. زما زامن داسې وي چې دا د قابلانو او په خپل نرتوب باندې مړه دي او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم. بھائی بہت خوش نصیب تھے جنہوں نے یہ رتبہ پایا. میرا دہشت گردوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارا حوصلہ کم نہیں کر سکتے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر کے ہمیں کمزور کر دیں گے، بلکہ ہم ان کو اپنے وطن کی دفاع کی خاطر اور بھی مضبوط کڑے ملیں گے. میں بھی فرنٹیئر کور میں نوکری کر رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اپنے وطن کے لیے قربان کرنے کے تیار ہوں. میں نے ماں سے کہا تھا کہ فوجی ہوں میں، جا کے ممکن ہے پھر میں نہیں آؤں گا. دفاع وطن میں شہید ہونے والوں کے والدین کا حوصلہ بلند ہے اور ان کو اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر ہے. ایسے ہی ایک شہید فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے شہید جبران ہیں جو 9 مارچ کو کرم میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے. شہید نے نہ صرف بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی. شہید کے والدین عزم و حوصلے کی عظیم مثال ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارا بیٹا ملک کی خاطر شہید ہو گیا. ہمارے اور بھی بچے ہیں جو اس ملک کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں. ډېر خوشحاله یو چې لکه مطلب سرکار نوکر دی، د سرکار ډیوټي کوي، نو په دې باندې موږ ډېر فخر کوو چې شهید شوی دی او انشاءالله موږ به نور هم داسې چې بچي به وي د دې ملک. سینٹ کے اجلاس میں سینیٹر عرفان صدیقی نے پاکستان کی شاندار فتح پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جس نے پوری قوم کو متحد کر دیا. انہوں نے کہا کہ دفاعی کامیابی پر ایوان بالا سمیت پوری قوم نے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا. سینیٹر عرفان صدیقی نے اپوزیشن کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد کی منظوری میں اپوزیشن نے بھی بھرپور تعاون کیا، قابل تحسین ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ قومی معاملات میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا وقت کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے تاریخی فتح حاصل ہوئی. بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یوم تشکر کے موقع پر نیو سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں پرچم کشائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاک فوج نے تاریخی فتح حاصل کی ہے اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو پاک فوج پر فخر ہے. شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی. آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی کے حوالے سے یوم تشکر کے موقع پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مزار قائد پر حاضری دی. کور کمانڈر کراچی نے بابا قوم کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. بعد میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے اثرات تاثرات قلم بند کیے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان نے بھرپور کارروائی کر کے بھارت کو شکست دی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا داعی ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی یوم تشکر اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پوری قوم متحد اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. مارکہ حق میں تاریخی فتح پر لاہور میں یوم تشکر کے موقع پر دن کا آغاز
रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सजदा शुक्र से हुआ। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान खानी की गई और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। यौम तशक्कुर के मौके पर लाहौर में 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार इकबाल पर यौम तशक्कुर के हवाले से खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। फातिहा खानी भी की। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फूल रखे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर रखी मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम तशक्कुर के मौके पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी खुसूसी तकरीब के दौरान GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। पाक फ़ौज के जवानों ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर सलामी दी। 1965 की जंग में शहादत का रुतबा हासिल करने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर तकरीब के दौरान GOC 17 डिवीज़न मेजर जनरल अज़हर यासीन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तकरीब में फ़ौजी अफसरान, जवानों और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वतन अजीज़ के लिए जान कुर्बान करने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। पेशावर में यौम तशक्कुर पर गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सब्ज़ाज़ार में कौमी परचम बुलंद किया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली, सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए दुआ की गई। तकरीब में मारका हक के शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब से खिताब में फैसल करीम कुंडी ने मुसल्लह फ़ौज और मुल्क भर के अवाम को इस तारीख़ी फ़तह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आज अवाम मारका हक की तारीख़ी कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क का दिफा यकीनी बनाकर दुनिया में मुल्क और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज का दिन न सिर्फ हमारी मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ है, बल्कि पूरी कौम के इत्तेहाद, यकजहती और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल भी है। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के शहीद हवालदार लालक जान निशान हैदर ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस हवाले से देखते हैं ज़िला गदर से हमारे नुमाइंदे हिदायत शाह की ये रिपोर्ट। जिला गदर के खूबसूरत गांव हुंदुर से ताल्लुक रखने वाले लालिक जान 1999 की कारगिल जंग में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए। उन्होंने पाक सर जमीन की हुर्मत की खातिर अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फकर से बुलंद कर दिया। आज जब एक बार फिर पाक बरहद सरहदी कशीदगी खबरों की जिन्नत बन रही है, हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की सरहदें ऐसे जान निसारों की कुर्बानियों से महफूज है। मेरा बाप एक शेरदिल जवान था जिसने इंडिया के अंदर घुस के उनको मारा था। उन्होंने सिर्फ 29 बरस की उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया जिसे आने वाली नस्लें फकर से याद रखती रहेगी। आज का दिन हमें ये एहद करने का पैगाम देता है कि हम लालिक जान शहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के हर इंच की हिफाजत करेंगे और दुश्मन को बावर कराएंगे कि ये सरजमीन उन बहादुरों की है जिन्होंने वतन की दिफा में अपनी जानें कुर्बान की है। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गजर। जेलों में भी यौम तशक्कुर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गरियन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर फूल रखे और सलामी पेश की। हमारे नुमाइंदा नईम अख्तर भट्टी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे क्या तफसीलात हैं आपके पास। मैं इस वक्त जेल मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह जेल में भी मारका हक में तारीखी फतह की खुशी में यौम तशक्कुर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ नमाज फजर में मुल्क की सलामती, तरक्की और शोधा की बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। जेएलएम के सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर पाकिस्तान के शोहदा को गरीजन कमांडर मेजर जनरल इंतखाब आलम ने चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से फूल चढ़ाए और शोहदा की फैमिली और शहरियों की तरफ से भी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर स्कूल के तलबा, आर्मी अफसरान और ज़िले इंतज़ामिया और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। नारे तकबीर, पाकिस्तान। स्वाबी में यौम तशक्कुर मारका हक के हवाले से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की।
इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबान दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान खुसूसी ने मेहमानों की किताब में शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने तासुरात भी लिखे। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्तान डिवीजन में भी यौम तशक्कुर मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रैलियों तकरीबात में हर तबका फ़िक्र से वाबस्ता सैकड़ों अफराद शरीक हैं। बात करते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदा फरहान मिर्ज़ा से। फरहान, बताइएगा, मुल्तान डिवीजन में यौम तशक्कुर के मौके पर शहरियों के जोश व जज्बे को कैसे पा रहे हैं आप, और रैलियों के हवाले से क्या तफसीलात आगाह कीजिएगा। 10 मई पाक फौज की शानदार फतह के दिन, जिस दिन बहादुरी, शुजात और दिलेरी से पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए और उनका गरूर खाक में मिला दिया, और आज 16 मई को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जा रहा है। जनूबी पंजाब भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। मुख्तलिफ शोबा जात से वाबस्ता अफराद जो हैं वो रैलियों में शरीक हैं। ये एक शानदार फतह है और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस फतह से हमकिनार किया। पाक फौज हमेशा हमारा फ़ख्र रही है, हमारा दिफा रही है। आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, जैसे कि हमारे DGISPR ने कहा था कि शुरू भारत ने किया। मार्का हक में तारीखी फतह यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की है। मार्का हक यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पर आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि यौम तशक्कुर के सिलसिले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर रावलपिंडी में आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की है और शहीद की बुलंदी दराजात के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा है। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सरबसजूद होकर उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिस पाक परवरदिगार की नुसरत हमारे साथ रही है और हमने हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने की उस शानदार और अजीम रवायत को बरकरार रखा है। और इसी सिलसिले में हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह और आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा है। मार्का हक यौम तशक्कुर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मार्के में शानदार फ़तह और कामयाबी नसीब की है और आज मुल्क भर में तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर और मार्का हक की तकरीबात मुनक़्क़द करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने परचम कुशाई की है और शुहदाए कराम के लिए दुआए मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी की दुआ भी की है। इस मौके पर कुरान ख़ानी का भी एहतमाम किया गया।
इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुल्क कौम की तरक्की के लिए मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमाए कराम, अवाम और अफवाज पाकिस्तान का ये मुश्तरका अहद है। कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कौम को इस अजीम फतह की मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने परचम कुशाई की। शुहदाए कराम के लिए दुआए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आज वतन अज़ीज़ में यौम तशक्कुर इस अज़्म और यकीन के साथ मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा हर महाज पर नाकाबिल तस्ख़ीर है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी ने साबित कर दिया कि जब कौम अपने मुहाफ़िज़ों के साथ खड़ी होती है तो कोई भी हमारी ताकत और खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं कर सकता। नाज़रीन, यौम तशक्कुर आज़ाद कश्मीर भर में भी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, शुहदा की बुलंदी के दराजात और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम तशक्कुर के सिलसिले में परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ वज़ीर तरक्याती अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद रशीद ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शुहदा जम्मू व कश्मीर पर भी यौम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। बाद अज़ां यादगार शुहदा से रैली भी निकाली गई। मार्का हक में तारीखी फतह यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में और मुख्तलिफ जगहों पर परचम कुशाई की तकरीबात हो रही हैं। ख़ासतौर पर यादगार शुहदा पर तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं और शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक में तारीखी फतह नसीब हुई है और आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शुहदा की यादगारों पर फूल रखे जा रहे हैं और शुहदा की बुलंदी दराजात के हवाले से खुसूसी दुआएँ की जा मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात हो रही हैं और शुहदा की यादगारों पर इस वक्त हाज़िरी दी जा रही है। मुल्तान से ये मनाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर यादगार शुहदा पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी जा रही है। परचम कुशाई की तकरीब भी की जा रही है और साथ साथ इन शहीदों के बुलंदी दराजात के हवाले से भी खुसूसी दुआ की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी गई है। कराची के मनाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर भी शुहदा की यादगारों पर जो वो हाज़िरी दी गई है, इन शहीदों पर नाज किया जा रहा है। इन शहीदों के बुलंदी दराजात के हवाले से दुआ की जा रही है। हम शहीदों को ना कभी भूले हैं, ना कभी भूलेंगे। ये शहीद हमारा फ़ख्र हैं। इन्होंने यकीनन जो मुल्क की हमारी नज़रियाती सरहदें हैं, हमारी जो जुग़राफ़ियाई सरहदें हैं, इनका दिफ़ा किया हुआ है और इनके दिफ़ा में बहादुरी के बेमिसाल जौहर दिखाते हुए जामे शहादत नोश किया और आला तरीन फ़ौजी एजाज़ात भी अपने नाम किए। आज शहीदों के हवाले से भी यौम तशक्कुर मनाते हुए हम बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर सकते हैं और साथ ही साथ फ़ख्र भी कर सकते हैं कि ये शुहदा इस मादरे वतन के जो बेमिसाल सपूत हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, ये इस पाक सरजमीन का फ़ख्र हैं। आज हम अपने शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इन शुहदा की क़ुरबानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ उनकी
बुलंदी दराजात के लिए दुआ भी कर रहे हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस एक मरतबा फिर दुश्मन की जानिब से मुसल्लत की गई जारहियत का हमने भरपूर जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल रही और हमने देखा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हो गए और वतन अजीज़ का भरपूर दिफा करते हुए दुश्मन को हर महाज पर धूल चटाई और वो अजीम और शानदार रवायत बरकरार रखी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह जो है वो हमारे नाम की और हम आज इस अजीम कामयाबी पर, इस तारीख़ी संग मील पर जो है हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिसकी नुसरत के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। उस पाक परवरदिगार का, उस रब्बे ज़ुल जलाल का बेइंतहा शुक्र कि उस पाक परवरदिगार ने हमारे सब्ज़ हिलाली परचम को एक बार फिर जो है वो हमेशा की तरह सर बुलंद रखा, इसे आबरू इसकी रखी और साथ साथ ये कि इसकी हुर्मत पर कोई आँच नहीं आने दी। और इस सिलसिले में पाक फ़ौज के जवानों ने और पूरी कौम के तमाम बसने वाले जितने भी लोग हैं, तमाम पाकिस्तानियों ने उनका जो जज्बा है वो अमली तौर पर यकीनन जो वो काबिल दीद रहा, वो बेमिसाल रहा। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह और मुल्क भर में इस सिलसिले में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में आज शहीदों की यादगारों और उनके मज़ारों पर जो है वो हाज़िरी दी जा रही है और उन शहदा के मज़ारों पर फूल रखे जा रहे हैं। मेहमान किताबों में तासुरात कलमबंद कर रहे हैं, भरपूर खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, गाज़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और आज हम एक हैं बिलाशुबा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तो हमने दिफाई महाज पर जो वो कामयाबी समेटी, लेकिन हम हमा वक्त तैयार हैं। हम अहकाम इलाही के मुताबिक, दुश्मन के मुताबिक या किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ जो है निपटने के लिए और साथ साथ अपनी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के सिलसिले में बुनियान मरसूस की अमली तस्वीर हैं। मार्का हक में कामयाबी और आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शुहदा हमारे माथे का झूमर और गाज़ियों को हम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़।